हेलो स्टूडेंट्स, तो एनटीए ने अपनी आंसर की रिलीज कर दी है और अब हमें देखना है कि कौन सी आंसर की करेक्ट है और किसको हमें चैलेंज करना है। लेट्स सी हेयर इन 22 जैन इवनिंग क्वेश्चन नंबर 38। ये क्वेश्चन आपके केस में अलग हो सकता है, इसीलिए आप क्वेश्चन आईडी नोट कर सकते हैं। और इस क्वेश्चन में हम लोगों ने देखा कि एनटीए ने माइनस एफ डॉट डी आर को वर्क डन ऑफ अ कंजर्वेटिव फोर्स लिखा है। ये कंजर्वेटिव एनवायरनमेंट में वर्क डन नेगेटिव तब आता है जब हम कोई एक्सटर्नल फोर्स का वर्क डन निकाल रहे हैं। ठीक है, तो इस केस में हमारा जो ऑप्शन दे रखा है वो ऑप्शन 3 दे रखा है, जिसका मतलब है कि वर्क डन वाली स्टेटमेंट करेक्ट है, ऐसा एनटीए ने बोला है। लेकिन वर्क डन फॉर एनी गिवन फोर्स, स्पेसिफिकली जब एनटीए बोलता है द कंजर्वेटिव फोर्स, देन द वर्क डन फॉर द फोर्स इज ऑलवेज एफ डॉट डी आर, एंड देयरफॉर work done by the force is always plus f dot dr and not minus f dot dr as given in statement 1. So statement 1 and statement 2 both are false. So given option is 3. Our answer key is option 4. So we have to challenge this question. Okay. There is a prism given and which has a coating on the other exiting end of 1.5. इस क्वेश्चन में जो हमारा आंसर बनकर के निकल के आ रहा है वो आ रहा है लेस देन 25 डिग्रीज। जब एंगल ऑफ इंसिडेंस छोटा होगा तो आपका सेकेंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बड़ा होगा, जिसकी वजह से टीआईआर होगा। तो जो भी ऑप्शन होगी वो इंसिडेंट एंगल पे लेस देन की होगी। तो ये ऑप्शन लेस देन 15 डिग्री पे है लेकिन लेस देन 25 डिग्री पे नहीं है। तो लेस देन 15 डिग्री भी करेक्ट हो जाता है, 15 टू 20 डिग्री भी करेक्ट हो जाता है और 15 डिग्री भी करेक्ट हो जाता है, क्योंकि वो एंगल आ रहा है 25 डिग्रीज। ऐसे में हम लोगों ने ये फाइंड आउट किया कि इसमें जो गिवन ऑप्शन है वो तो बिल्कुल ही गलत है, ग्रेटर देन 25 डिग्री। देयरफॉर दिस इज ऑल्सो अ बोनस वेयर नन ऑफ द ऑप्शंस आर मैचिंग। ओके, दिस इज 23rd Jan evening. In this problem, a block is sliding down on an inclined plane of slope theta at an instant t equal to 0. Here, if it is written that a block is sliding down with uniform speed u on inclined theta at t equal to 0, then this problem would be absolutely correct and option 1, which is given by the NTA, would be correct. But because it is not written initially that it is sliding down with same speed as u given later part, therefore this question cannot be solved and none of the options are matching. So none of the answers are matching. First option will only match if it is written that the block is sliding down with speed u. So this is also a bonus. Next problem, to compare EMF of two cells using potentiometer having least count scale of 1 centimeter. So 1 centimeter is going to be taken as error, absolute error in the measurement, and there are two measurements, 200 centimeter, 150 centimeters, and since we have to take the sum of relative error to get the percentage error, the answer we are getting is 1.17%, which is nowhere close to any of these options. So this option given by NTA as 1 is not at all matching, and therefore this is also a bonus problem from 23rd Jan evening. 24th Jan morning, in this problem 3 blocks are there and we have to find the magnitude of force. In this free body diagram problem, we are exactly getting the force required is 190 newtons and not 210 as given by NTA. So this is a challenge problem. We'll challenge this problem. ठीक है, next question पे चलते हैं। यहाँ पर when 300 joule of heat is given to an ideal gas, Cp is given, temperature is risen from 20 to 50 degrees centigrade at constant volume. So heat given relation is NCV delta T. Using Mayer's relation, we can found Cp minus R is equal to Cv, and we can estimate only the moles of the gas. Since the molecular mass of gas is required from moles to calculate the mass of the gas which is asked, therefore we cannot find out the value of mass without molecular weight. Interestingly, the value of moles coming is exactly 0.481. So there must be something missing in this problem. So definitely this is not correct and we cannot estimate the mass of the gas from the given data, and therefore this problem
is also should be bonus. Okay, so in this problem 7.9 mega electron volt particle scatters exactly 180 degrees from an atomic number of 79. In this we have to estimate the diameter of this nuclei, and for this we will use the basic relation of distance of closest approach. So this is equal to this is ZE square, and with this what we estimate is radius, and radius turns out to be 2.88 10 to the power minus 14. Now this is the radius, and that is what the option NTA has given, that the radius is 2.88, but what they have asked is estimate the diameter of nuclei, which is 2 times radius equal to 5.76 into 10 to the power minus 14. So this diameter of this nuclei is estimated to be option 4. Therefore, option 4 should be correct. So we can challenge this easily. I hope there are no other problems. If in case we will find more problems, we will come back to you. हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो अब हम वो क्वेश्चन देखने वाले हैं जो केमिस्ट्री में आप लोग चैलेंज कर सकते हो। सबसे पहले बात करेंगे क्वेश्चन जो कि हमारे 24 इवनिंग शिफ्ट में पूछा गया था, और ये है क्वेश्चन नंबर 55। यहाँ पे जो एनटीए ने आंसर दिया हुआ है वो आंसर 1 दिया हुआ है। एनटीए ने यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट को ट्रू बोला हुआ है। बात करते हैं स्टेटमेंट 1 की। स्टेटमेंट 1 कह रहा है कि जब भी हम क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन की बात करते हैं तो उस केस में 2 डिफरेंट एल्डिहाइड हमें ऑलवेज 4 प्रोडक्ट देंगे। यहां पे एनटीए ने वर्ड यूज किया है ऑलवेज, तो ऑलवेज 4 प्रोडक्ट देंगे, ये चीज गलत है। क्योंकि अगर आप ऐसे एल्डिहाइड लेते हैं जिनमें एक एल्डिहाइड के पास अल्फा हाइड्रोजन है, दूसरे के पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो उस केस में 4 प्रोडक्ट नहीं बनेंगे। इसका मतलब हमारा जो स्टेटमेंट 1 है वो गलत स्टेटमेंट है। बात करेंगे सेकंड स्टेटमेंट की। सेकंड स्टेटमेंट बोल रहा है कि सेमी कार्बाजाइड रिएक्ट्स विद मिक्सचर ऑफ बेंजल्डिहाइड एंड एसिटोफिनॉन अंडर ऑप्टिमम पीएच, इट फॉर्म्स अ कंडेंसेशन प्रोडक्ट विद एसिटोफिनॉन ओनली। जबकि ऐसा नहीं है। जब आप रिएक्शन कराएंगे सेमी कार्बाजाइड की, तो फिर चाहे वो एसिटोफिनॉन हो चाहे वो बेंजल्डिहाइड हो, दोनों ही हमारे कंडेंसेशन के प्रोडक्ट देते हैं। इसका मतलब यहाँ पे स्टेटमेंट 2 भी हमारा गलत स्टेटमेंट है, जबकि एनटीए ने दोनों स्टेटमेंट को सही बोला हुआ है। तो एनटीए के अकॉर्डिंग आंसर 1 होना चाहिए, मतलब दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे ट्रू हैं, जबकि यहाँ पे दोनों ही स्टेटमेंट गलत हैं। तो आकाश के अकॉर्डिंग स्टेटमेंट दोनों गलत हैं, इसीलिए आंसर हमारा 4 होना चाहिए। दूसरा क्वेश्चन है हमारा 28th इवनिंग शिफ्ट का। 28th इवनिंग शिफ्ट में ये क्वेश्चन नंबर 71 है। हो सकता है आपके में क्वेश्चन नंबर चेंज हो। यहाँ पे इसने ये बोला हुआ है कि एक बफर बनाया है NaHCO3 और H2CO3 का, और उस बफर से जब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बनाया है तो फिर उसका जो पोटेंशियल है वो 235.3 मिलीवोल्ट आता है। अब यहां पे इसने जब रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है यहाँ पे Bi2O3 Bi का, जबकि यहाँ पे टिन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +2 है, जबकि यहां पे जो ऑक्सीडेशन स्टेट है टिन की वो +4 है। तो ये एक्चुअल में इसने ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया हुआ है। जब इसका आप रिडक्शन पोटेंशियल देखेंगे तो वो बिस्मथ Bi2O3 Bi के रिडक्शन पोटेंशियल से ज्यादा आएगा। तो यहां पे ये हमारा रिड्यूस होना चाहिए था, ये ऑक्सीडाइज होना चाहिए था, जबकि यहां पे क्वेश्चन में ऐसा नहीं दे रखा है, जो आंसर दे रखा है उसके अकॉर्डिंग नहीं दे रखा है। तो इसीलिए आकाश के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन बोनस होना चाहिए, क्योंकि इससे जो एनटीए ने आंसर दिया है वो आंसर नहीं आएगा। क्वेश्चन में डेटा की इनकंसिस्टेंसी है, इसीलिए ये क्वेश्चन आप चैलेंज कर सकते हैं। पिछला क्वेश्चन भी आप चैलेंज कर सकते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। सो बेसिकली आज ये हम जो वीडियो बनाने जा रहे हैं, सो बेसिकली उसका मकसद क्या है। सो कल एनटीए ने रिस्पॉन्स शीट जो है वो रिलीज कर दी है, तो सारे के सारे क्वेश्चंस और सॉल्यूशंस आपको आकाश की वेबसाइट पे मिल जाएंगे। बट हमें मैथ्स में 2 क्वेश्चंस ऐसे मिले हैं जहां पर आप एनटीए को चैलेंज कर सकते हो। सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन। तो क्वेश्चन कौन सा है जहां पर आप चैलेंज कर सकते हो? सो पहला जो क्वेश्चन है वो ये है 22 जनवरी इवनिंग सेशन का क्वेश्चन नंबर 5। अब आपके पेपर में हो सकता है क्वेश्चन कोई दूसरा हो, आई मीन क्वेश्चन नंबर कुछ हो सकता है चेंज हो, बट जो क्वेश्चन है वो ये है, जो 22 का जो जनवरी वाला 22 जैन और जो इवनिंग सेशन है, तो क्वेश्चन बेसिकली ये है y = y सेटिस्फाइज द डिफरेंशियल इक्वेशन। तो डिफरेंशियल इक्वेशन का एक क्वेश्चन उन्होंने दे रखा है।
अब इसमें प्रॉब्लम क्या है, जब आप इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हो तो dy cos y अपॉन 1 प्लस 2 sin y, एंड राइट साइड में आप लिखेंगे dx अपॉन, ये सारी की सारी टर्म्स लिखेंगे जिसमें 16 आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ x प्लस 9 रूट x आ जाएगा, एंड देन उसके साथ में आएगा अपने पास 4 प्लस अंडर रूट 9 प्लस रूट x। एंड जब आप इसको t मान के सॉल्व करेंगे तो बेसिकली होना ये चाहिए था कि बची हुई टर्म जो है वो dt में कन्वर्ट हो जानी चाहिए थी, बट ऐसा नहीं हो रहा। जो बची हुई टर्म है वो dt में कन्वर्ट नहीं हो रही, बट जो सॉल्यूशन है जिस तरह से उन्होंने ये बनाया होगा, क्योंकि वो जो डेटा है वो पूरा एज इट इज सेट हो रहा है, अगर हम इसको dt मान लेते हैं तो प्रॉब्लम बेसिकली क्या है, ये जो dt बनना चाहिए था वो dt नहीं बन रहा। इंटीग्रेबल तो है ये, बट जिस क्वेश्चन के हिसाब से और जो ऑप्शन दे रखे हैं उसके हिसाब से वो मैच नहीं होगा, तो इसको आप बिल्कुल चैलेंज कर सकते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज 24 जनवरी अगेन इवनिंग सेशन। जो हमारे पास जो क्वेश्चन था उसमें क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर हो रहा है, आपके पेपर में हो सकता है कि वो क्वेश्चन नंबर चेंज हो। तो क्वेश्चन क्या है, लेट ए वेक्टर, बी वेक्टर एंड सी वेक्टर कुछ दे रखा है, and let v be the vector in the plane of vectors a and b such that the length of its projection on the vector c is this। तो यहाँ पर a वेक्टर और b वेक्टर जो है वो हमें दे रखे हैं, v वेक्टर जो है वो a और b के प्लेन में ही दे रखे हैं। तो हम जब क्वेश्चन स्टार्ट करें तो बेसिकली एक जनरल अप्रोच है x टाइम्स ऑफ a वेक्टर प्लस y टाइम्स ऑफ b वेक्टर। अब इसका जो प्रोजेक्शन है वेक्टर c पे वो हमें 1/√14 दे रखा है। तो जब हम प्रोजेक्शन के लिए जो इक्वेशन बनाएंगे वहां पर हमें ए की इक्वेशन मिलेगी, और ए की इक्वेशन से हम दो वेरिएबल यहाँ पे सॉल्व नहीं कर पाते। हालांकि जब आप सॉल्व करके देखोगे तो x जो है वो एलिमिनेट हो जाता है और y की वैल्यू प्लस माइनस 1/2 यहाँ पर आ जाती है। बट जब x यहाँ पे कैंसिल हो गया सॉल्व करते हुए टाइम, तो अब x के आप कुछ भी वैल्यू रखेंगे इनफाइनाइट वैल्यूज के लिए, जो v का जो मैग्नीट्यूड है वो इनफाइनाइट तरीके से हम चेंज कर सकते हैं। x की वैल्यू 1 के लिए सॉल्यूशन मैच हो जाता है, अगर आप x की वैल्यू 1 रखोगे तो सॉल्यूशन मैच हो जाएगा, 2 रखोगे, 3 रखोगे, 4 रखोगे तो बेसिकली मॉड ऑफ v चेंज होता रहेगा। तो बेसिकली कोई यूनिक इसमें आंसर नहीं आ रहा, एंड दैट्स व्हाई वी आर चैलेंजिंग दिस क्वेश्चन।